ہے
مولا میرا لوٹا گیا کربلا میں کاروان مصطفیٰ لوٹا گیا. دیکھتے ہیں مولا میں وہاں پڑھنے شاید میرا کہ شب و انصار کا دل توڑ رہے تھے شبیر، شب و انصار کا دل توڑ رہے تھے شبیر. دیکھنا یہ تھا انہیں ذکر تنو سر کو نہیں، یا یوں کہیے کہ سبھی لال اکٹھے کر کے جوہری دیکھ رہا تھا کوئی پتھر تو نہیں، جوہری دیکھ رہا تھا کوئی پتھر تو نہیں. آئیے جناب پہلا حضور کی صاحب میں نماز کر رہا ہوں. محمد وآل محمد صلی اللہ. محمد وآل محمد صلی اللہ. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں پھول کب پائی حسین. چل دینا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے دل میں تیری لاش تک آئی حسین. بس میں گھبرا ہی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. بہہ لگے تھے آنکھ سے آنسو تیری روح سہا کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا. آنکھ پت رہی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آپ حضرات جو شاعر آ رہے ہیں اور ابھی چند ہی لمحوں میں قبلہ آ جائیں گے جیسے کہیں پہلے کہا ایک نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلی اللہ. آئیے ہماری انجمن حیدری حضور کے
نواخان جناب انور حلوی صاحب کے التماس کر رہا ہوں کہ آئیں مبارکہ ہے سیدہ میں نظرانِ عقیدت پیش کریں پر محمد وآل محمد صلی اللہ آپ لوگ مصاب ہو رہے تھے مولا سلامت رکھے تھوڑا آپ لوگ قریب آ جائیے بس چند ہی لمحوں میں قبلہ آپ کے درمیان ہوں گے 4 مصرے میں آپ لوگوں کو نظر کر دوں کہ سرور نے آپ دار نگینہ بنا دیا جناب سرور نواز سرور کہتے ہیں کہ سرور نے
आबदार नगीना बना दिया, पत्थर का हुर तराश के हीना बना दिया। तो हुर के बदन में जितना था पानी हुसैन का, शर्मिंदगी ने उसको पसीना बना दिया, शर्मिंदगी ने उसको पसीना बना दिया। मैं जनाब खादिम अब्बास साहब से इल्तिमास कर रहा हूँ और इल्तिमास कर रहा हूँ कि इख्तिसार से काम लें, क्योंकि पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, सबको मौका मिल जाए। मोहम्मद बोले मोहम्मद दो मिसरे हैं, बस से आ रही है ना, हज़रत हलवारी साहब के और हमारे उस्ताद मुहतरम मरहूम पत्नी उस्ताद ने इस बात से 50 साल पहले तुमसे कहा होगा, वो भी सही के लिए नहीं है। हुसैन ऐसे भुला न पाएगी दुनिया, हुसैन ऐसे किया है तीरों पे सजदा, हुसैन ऐसे बनाई हाथों से अपने शरीर की कुर्बान, बनाई हाथों से अपने शरीर की कुर्बान, ज़ईफ़ हो के उठाई जवान की मैया, ज़ईफ़ हो के उठाई जवान की मैया, जबीन पे पर नहीं आया हुसैन ऐसे थे, भुला न पाएगी दुनिया, हुसैन ऐसे थे। बदन है तीरों से जख्मी, जबी भी है जख्मी, बदन है तीरों से जख्मी, जबी भी है जख्मी, फरस पे झूम रहे हैं हुसैन इब्ने अली, फरस पे झूम रहे हैं हुसैन इब्ने अली, ज़बान पे है नहीं शिकवा, हुसैन ऐसे थे, भुला न पाएगी दुनिया, हुसैन ऐसे थे। निसार क्यों न हो काबा है बंदगी ऐसी, निसार क्यों न हो काबा है बंदगी ऐसी, नमाज क्यों न जबी मिले शहदी की, नमाज क्यों न जबी मिले शहदी की, किया है तीरों पे सजदा, हुसैन ऐसे थे, भुला न पाएगी दुनिया, हुसैन ऐसे भुला न पाएगी दुनिया, हुसैन ऐसे थे। मौला सलामत रखे। आज इमाम हुसैन का ही गम मनाने के लिए मोमिन आप लोग हाजिर हुए हैं। वाकई हमने मोहतरम जनाब कैसरकी ने कहा कि एक सलाम मोहम्मद
کہ آلے نبی کے آپ لوگوں کے لیے انہوں نے کہا کہ آلے نبی کے سب کی سند ہے یہ آپ میں سوچتا ہوں کہ مائک وغیرہ جب پرفیکٹ ہو جائے ہمارے بھائی لگا دیں تاکہ نائک پورا ہوتا رہے اور چندی ہمیں انشاءاللہ کہ ہمارے نظروں کے کہ آلے نبی کے سب کی سند ہے یہ مجلسیں آلے نبی کے سب کی سند ہے یہ مجلسیں ان مجلسوں میں آ کے مقدس سمر گئے تو اس مجلس حسین کا دنیا سے ہے سوال 70,000 کر کے وہ منبر کدھر گئے کر کے وہ منبر کدھر گئے آئیے میں سمجھ کرنا جو ہے منتظر بھی چاہتے ہیں محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی سکینہ وہ سکینہ نہیں رہی بابا نہ قید ہو کے نظردہ سامنے بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا وہ دور اور تھا دھونا جب اٹھاتے تھے خود اپنے تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا اذیتوں سے مسلسل گزارتے ہی رہے تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا ارے جہاں سے گزری کھلے سے یہ کہہ رہے تھے سبھی غریب
की दुनिया उजड़ गई बाबा ना जाने कब से सितम गए थे मुंतज़िर मेरे हर एक मोड़ पे पत्थर थे मुंतज़िर मेरे अरे फूफी के साथ सकीना जहाँ गई बाबा तुम्हारी बेटी की दुनिया उजड़ गई बाबा ऐ काश आप इशारा अगर फरमाते चर्चा की तरह से चाहे ये हाथ कट जाते मैं हाथ हटाती नगर से आपकी बाबा तुम्हारी बेटी की दुनिया उजड़ गई बाबा वो शहर के सर से तक लूं ये रोके कहती थी मैं कैद खाने से आज़ाद हो नहीं सकती तमाम होगी यही मेरी ज़िंदगी बाबा अरे सकीना वो सकीना नहीं रही बाबा जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे। वाकई मौला ये लोग बहुत देर से आप लोग खड़े थे ये इतना मजमा और मौला के हवाले से पढ़ रहे थे कि मौला ने क्या किया और बीवी सकीना के हवाले से पढ़ रहे थे तकल्लुम का कलाम पढ़े थे कि जनाब शोरा जौनपुरी कहते हैं कि कंदीले शबिस्ताने इमामत रही ज़ैनब कंदीले शबिस्ताने इमामत रही ज़ैनब तारीख़े शहादत पे शहादत रही ज़ैनब तो हर लम्हा गुजरती ही गई कर्बला से ऐ मौत बता कैसे सलामत रही ज़ैनब ऐ मौत बता कैसे सलामत रही ज़ैनब फिर उन्होंने कहा कि जलते हुए खैमों के सुलगते हुए मंजर भीगी हुई पलकों पे उठा ले गई ज़ैनब तो शफीक के मक्तल से पैगंबर की लहर तक इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। एक ऐलान में यहीं से करता चलूं कि जो बच्चे ताबूत हर साल उठाते हैं वो अधिक से ऊपर चले जाए बाद में रश हो जाएगा। हमारी अंजुमन हैदरी हल्दौर से मुझे कहा गया कि ये ऐलान कर दीजिए जो बच्चे बराबर ताबूत उठाते आ रहे हैं उनसे इस तरह के ऊपर चले जाए और हमारे और मेरे भाई सरकारी सकीना चैनल लेके भी आ गए हैं उस पर भी आप लोग लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। मैं जनाब रेहान हल्लौरी साहब से क्या है और बारगाह है सैयद मिलना की तरफ पेश करें आप हजरत उनका इस्तेमाल डाले सलवात के बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
लुट कर आ गई है नाना तेरी ज़ैनब लुट कर आ गई है ये मीर रसन के शानों पे ये खाक बला मेरे बालों पे नाना मेरी हस्ती खाक बना गई है नाना तेरी ज़ैनब आ गई है नाना तेरी ज़ैनब लुट कर आ गई है ये खून की छींटें चादर पे लिपटी थी मैं लाश अकबर पर नाना एक बच्ची दिल मेरा खा गई है नाना तेरी ज़ैनब आ गई है नाना तेरी ज़ैनब लुट कर आ गई है कांटों पे कभी अंगारों में मैं चल के गई बाजारों में नाना यूं मुझे पे ज़ईफ़ी छा गई है नाना तेरी ज़ैनब आ गई है नाना तेरी ज़ैनब आइए मैं जनाब रज़ा काज़मी साहब को बिना किसी तमीज़ के पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे ज़ैनब को बरक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया याद आओगे भैया याद आओगे भैया के बाद आपके होगा मेरी गुर्बत का ये आलम उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा मातम सादत को जब राह में देगा कोई सदका है याद आओगे भैया आइए ये हमारे प्रसिद्धि भी है कि हमारे दरमियान वाइस सुल्तान कोई हिंदुस्तान का वो नाम जिसमें बहुत प्रसिद्ध लिखे हमारे दरमियान हमारी प्रसिद्धि भी है मैं चार विषय से उनको बुलाता एक सभा पड़ी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद करबला में मौजूदा के भी दिखाया गया करबला में मौजूदा के भी दिखाया गया फूल जो पत्थर था उसे पानी से पिघलाया गया तो पढ़ के ये लगता है कुरान शहादत हुसैन एक ही सूरा 72 बार दोहराया गया एक ही सूरा 72 बार दोहराया गया जनाबे वाइस सुल्तानपुरी जो कि मोहताज तारुफ नहीं है मैं उनको इत्तराज करूंगा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ لوہا جو پچھلے سال کا تھا وہ پڑھا جائے. روئی بہت یقین سکینہ نشیت ہے. حضرت مظلوم کربلا تصور کرنا بہت مشکل ہے. احساس کر ہی نہیں سکتا انسان, کوشش کرتا ہے. بس وہی کوشش ہے حضرت مظلوم کربلا آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے آج نوجہ دنیا بھوکے سنے جا رہے ہیں. یہ منظر ہے روزے عاشور شام غریبہ کا, جب سب کی شہادت ہو گئی. جناب امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بچی, 4 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے یہ بخوبی سب کو معلوم ہے. بہت سے عزادار ایسے ہوں گے جن کی بچیاں 4 برس کی ہوں گی. تصور کرے جناب سکینہ کتنی بڑی تھی, دامن جلا ہوا تھا, کانوں سے خون جاری تھا. جناب سکینہ بابا بابا کہتی ہوئی مکتب کی طرف چلی. وہی منظر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں بھی مومنین ہے, توجہ کا طالب ہوں. حضرت مظلوم کربلا ایک یتیم بچی ہے اور اس کے کتنے مسائل اٹھائے جا رہے ہیں. آپ کی سماعتوں کے حوالے نہ ہوگا. سنسان بن برات اٹھتا ہوا دھواں, ہر نکلی پیدل کو ڈھونڈنے ننھی سی ایک جان, دکھ رہا نہیں ہے پیچھے والوں کو. ٹوٹا تھا کم سنی میں مصائب کا آسمان, ارے کھاتی ہوئی وہ ٹھوکریں لاشوں کے درمیان. سکینہ
سی طرف گئی بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی آواز یا باقی یتیماں نے روک دی ارے لاشا غریب باپ کا بلال نشے میں روئی بہت لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑھائی ہر جنگل وہ کالی رات وہ غربت وہ غم نصیب آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب قریب ہر حالت کے در کی دیکھ کے روئی بہت غریب ہر بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں آگے بڑھی حسین کی مظلوم غمزدہ ہر تیروں سے جسم باپ کا بھرا ہوا گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگے کم سن تھی کوئی تیر اس سے نکل سکا پایا نہ جب حسین کا سینہ نچے روئے بہت یتیم سکینہ میں بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئے بہت یتیم
پر میرے بالوں کو ستمگر نے جو پکڑا بابا پھر یہ کہنے لگی رو رو کے یتیمہ بابا پر میرے بالوں کو ستمگر نے جو پکڑا بابا کی منتیں بہت کے ذرا انتظار گئے میں دے رہی تھی شمر کو بندے اتار گئے چھینے ہے دے رہے مگر مار گئے یہ درد جب پدر کو سنایا آخری بند ہے اس کے بعد مقطع آپ کو معلوم ہے آپ مسائل کربلا میں ذاکرین کربلا سے سنا کرتے ہیں کہ مظلوم کربلا کو قتل کرنے کے بعد ظالموں نے لباس تک لوٹ لیا تھا انگشتری تھی انگوٹھی کی ہاتھ سے انگوٹھی میں لوٹی تھی تصور ہے اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا میں نے اپنا تصور پیش کیا ہے وہی ہاتھ ہے جو مظلوم کربلا سکینہ کے سر پر سخت سے پھیلایا کرتے تھے بڑی ہی ان سے پھیرتے تھے اب ان ہاتھوں کے قریب گئی بچی میرا تصور یہ ہے کہ ظالموں نے جب لوٹا ہے سامان جناب امام حسین کا لباس تک لوٹ لیا لوٹنے والوں کو جلدی نہیں ہوگی انہوں نے کیا کیا ہوگا یہ تصور ہے انہیں تو جلدی تھی انہوں نے امام حسین پتھر پر رکھا ہوگا خنجر مارا ہوگا حسین کی ایک انگلی تک یہاں سب تک اب یہی برداشت کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں معصوم سکینہ اپنے بابا کے ہاتھوں کے قریب پہنچی جو ہاتھ سر پہ روز پھراتے تھے شاہدی اور اس ہاتھ کے قریب جب آئی وہ نازنین اپنے کے در کے ہاتھ پہ جس اس دم نہ تھی یتیم کے پیروں تلے زمین بن انگلیوں کا ہاتھ جو چومان سے
اور لاشے شہ زمن سے وہ جس دم جدا ہوئی لگتا تھا یہ گنا بچی حسین کی جانے لگی نشیب سے جب شہ کی لاڈلی بابا کو اپنے چھوڑ کے تنہا روئی بہت یتیم مولا سلام سے جناب عزیز جناب واحد سلطان کوئی صاحب آپ کے روبرو تو میں التماس کر رہا ہوں خطیب محترم خطیب اہل بیت عزت مآب خان جناب مولانا سید نصیر عادی صاحب کی طرف سے بھی آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں آپ حضرات ان کا استقبال علیہ سماعت کیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد لٹا نبی کا بھرا گھر اسی محرم میں لٹا نبی کا بھرا گھر اسی محرم میں ہوئے شہید 72 اسی محرم میں کسی کی گود لٹی اور کسی کی ماں گجری کٹا امام کا جب سر اسی محرم میں جوان کی موت نے آنکھوں کی روشنی لے لی جوان کی موت نے آنکھوں کی روشنی لے لی چھٹے حسین سے اکبر اسی محرم میں اور تماچے شبر کے کھائے یتیم بچی نے تماچے شبر کے کھائے یتیم بچی نے اور چھنے سکینہ کے گوہر اسی محرم میں اور خود اپنے لال کا پرسا ہر ایک سے لینے کو خود اپنے لال کا پرسا ہر ایک سے لینے کو بطول جاتی ہے گھر گھر اسی محرم میں ارباب اعظام یاد کریں آپ وہ وقت جب فرزند رسول الثقلین اپنے وطن کو چھوڑ کر کربلا کی طرف کوچ کر رہا تھا جب
वतन से रवानगी हुई तो उसूल और तरीका यही है कि जाने वाले मुसाफिर बुजुर्गों को सलाम किया करते हैं, खुदा हाफिजी किया करते हैं। फर्जंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने भी जाते जाते खुदा हाफिजी की, मगर अंदाज जुदा नजर आया। लोग जो सामने होते हैं उन्हें खुदा हाफिज करते हैं, मगर नबी के नवासे में जो सामने था उन्हें भी खुदा हाफिज किया, और जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा था उसे भी खुदा हाफिज किया, मगर उसकी खुदा हाफिजी के लिए उसकी तुरबत का रुख किया। और एक मरतबा फर्जंदे रसूल ने कब्र रसूल का रुख किया और अपने नाना की कब्र पर आए, और आने के बाद एक जुमला कहा, नाना नाना नाना, जंगल में दिल के प्यारों की बस्ती बसाएंगे, जंगल में दिल के प्यारों की बस्ती बसाऊंगा। नाना बसाएगा, नाना हुसैन अब न मदीने में आएगा, जंगल में दिल के प्यारों की बस्ती बसाएगा, नाना हुसैन अब न मदीने में आएगा। ये कहने के बाद जब सरकार सैयदुल शुहदा ने कहा, नाना अपने लाल को खुदा हाफिज कीजिए, नाना आपका लाल रुखसत हो रहा है, नाना हुसैन आपसे जुदा हो रहा है, नाना जरा उठकर देखिए हुसैन का क्या हाल है, नाना आपका लाल रो रहा है, नाना आप तो गवारा नहीं करते थे कि आपका नवासा हुसैन रोए, मुज़महिल हो, उसकी आंखों में आंसू आए, नाना आपको बर्दाश्त नहीं करते थे। जरा उठकर अपने नवासे का हाल को देखिए, अपने बेटे की कैफियत को देखिए। इतना कहने के बाद हुसैन मसरूद ने जुमला कहा, कहते नाना खुदा हाफिज, नाना मैं जा रहा हूँ, मगर नाना जाते जाते जुमला कह दूं, हुसैन को इस वक्त बड़ी तकलीफ है, हुसैन बड़े दुख में है, हुसैन बहुत गमज़दा है। किस बात का गम है हुसैन को? हुसैन ने वजाहत की, नाना मैं जा रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये गम सता रहा है, कल से आपकी तुरबत सूनी हो जाएगी, कल से आपकी कब्र सूनी हो जाएगी, कल से आपके बाजार पे कोई चराग जलाने वाला न होगा, आपकी कब्र का मुजाहिर हुसैन जा रहा है। ये कहने के बाद हुसैन ने खुदा हाफिज किया। अभी हुसैन ने खुदा हाफिज ही किया था कि कब्र रसूल से एक आवाज आई, मीर साहब की जबान में एक जुमला कहा, मेरे लाल हुसैन जा रहे हो तो जाओ, मगर जाते जाते इतना सुनते जाओ, कई दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन, कई दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन, शब को आई थी मेरे पास ये करती हुई बैन, घर मेरा लुटता है फरियाद रसूल सकलैन, सुबह को अपना वतन छोड़ के जाता है हुसैन, कहने आई हूँ कि कब्र से बोलूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला तो न छोड़ूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला तो न छोड़ूंगी मैं। लीजिए अरबाब आज़म, एक मरतबा में थोड़ी देर के लिए आप तवक्कुफ कीजिए, थोड़ी देर के लिए मुझे मौका दे दीजिए, मैं बाद में शफीहों को आराम से निकालूंगा, मगर इतनी दरख्वास्त और गुजारिश मेरे कबूल कर लीजिए। ये इतना बड़ा मजमा जो घंटों से यहाँ खड़ा है, ये सिर्फ मसाइल सुनने के लिए आया है, रोने के लिए आया है, आवाज़ारी के लिए आया है, लिहाजा मुझे मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ, बस 2 मिनट मुझे ले लीजिए, उसके बाद शफीहें बरामद होंगी। रवायत का फिक्रा कोई 2 मिनट के लिए रुक जाइए बुरैन भाई, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये जो शबीहें गुजर रही है ना, शबीह उठाने वालों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप जब शबीहों को बरामद कीजिएगा तो बहुत एहतियात के साथ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत अदब के साथ, इस तसव्वुर के साथ कि ये उन शहीदों की शबीह है जिनका लाशा करबला के रेत पर बिखरा पड़ा हुआ था, उन शहीदों की शबीह है। अब जरा सा रुक जाइए मुझे 2 मिनट के लिए, मैं अभी रवा को अपनी बड़ी तेजी के साथ तय कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अगले वक्त में गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है, मौसम भी इजाजत नहीं देता। मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा ये साल भर का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, बड़ा अहम प्रोग्राम है मुंबई का, यहाँ का इसके लिए आप थोड़ी सी हमें इजाजत दे दीजिए और हमें मसाइल पढ़ने दीजिए। ये मजमा रोने के लिए बेकरार है, अब आप एकदम मुतवज्जे हो जाइए। कई दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन, सबको आई थी मेरे पास ये करती हुई बहन, घर मेरा लुटता है फरियाद रसूल सकलैन, सुन को अपना वतन छोड़
छोड़ के जाना है हुसैन, कहने आई हूँ कि मुंह कब्र से मोड़ूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला तो न छोड़ूंगी मैं। इतना सुनने के बाद नवासे ने आवाज दी, नाना जान खुदा हाफिज, मैं अपनी अम्मा की लहर पर जा रहा हूँ। हुसैन ने नाना के मदार को छोड़ा, कब्र फातिमा का रुख किया। अब फातिमा की कब्र पर जब हुसैन आए हैं ना, और माने अल्लाह सुनोगे जुमला, जैसे ही अम्मा की कब्र पर आए, तावीज़ कब्र पे हाथ रखा और हुसैन ने बस एक ही जुमला कहा, ये जुमला पूरा मसाइब है और आपके रोने के लिए काफी होगा। रवायत कहती है मीर साहब की जबान में हुसैन ने अम्मा की तावीज़ कब्र पे हाथ रखा और रखने के बाद एक जुमला कहा, माँ लहू लुहान चमक देखने चलो। अब आप आमादा हो गए, अब सभी बरामद हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। मगर मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा, अम्मा लहू लुहान चमक देखने चलो, अम्मा लहू लुहान चमक देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में वसन देखने। हाँ, ये माहौल है। अब इस माहौल में आपके सामने शबीहों की आमद शुरू हो गई। आपको पता है हुसैन मजदूर जब वालिद करबला हो गए, दूसरी को पानी बंद हुआ, दूसरी तारीख को वालिद हुए, सातवीं को पानी बंद हो गया। सातवीं मोहम्मद से लेकर सुबह आशूर तक हुसैन के बच्चों की क्या कैफियत थी, हुसैन के असार की क्या कैफियत थी, हुसैन के असार की क्या कैफियत थी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। रवायतों का फिक्र यह है, असहाबे हुसैन और अंसारे हुसैन सारी रात का वजह बदल रहे थे और सिर्फ इंतजार था इस बात का कब सुबह होगी और कब ज़हरा के लाल पर अपनी जाने कुर्बान करेंगे। ये अब आपके सामने शबीहों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। मैं आपके सामने बहुत तफसीली मसाइल भी नहीं पढ़ सकता, मगर सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, जो शबीहें आ रही है इन शबीहों का आप इस्तेमाल करें। आपके सामने जनाबे मुस्लिम इब्न औसया की शबीह चली गई। हुसैन का बावफा सहाबी था, हुसैन का बहादुर सहाबी था, हुसैन का वफादार ईमानदार सहाबी था, खालिद कुरान भी थे, हाफिज़ कुरान भी थे, ज़रीफ़ुल उम्र थे। मगर इस ज़रीफ़ी के बावजूद हुसैन की नुसरत में कोई कभी नहीं वाक़ होने दी। मुस्लिम इब्न औसया आए हैं और आने के बाद जामे शहादत नोश फरमाया। उसके बाद जनाब अब्दुल्ला बिन खशबी की तरफ छवि है, उसके पीछे जनाब कासिम बिन हबीब अज़दी की छवि है, उसके पीछे हज़रत ज़रगामा बिन मालिक अरमानी के करगबी की छवि है, उसके पीछे जनाब ज़ुहैर बिन सलीम अज़दी की छवि है। मैं आपके समाज में प्रयास करूँ तो जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि वक्त इजाजत नहीं देता। मुंबई शहर है, यहाँ बड़े मसाइल होते हैं, मगर मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ। ये वो असहाबे बावफा है हुसैन मज़लूम के, जिन्होंने आवाज़ दी, मौला हमारी तरफ से कोई कभी नहीं वाक़िफ़ होगी। मौला अगर आप चाहते हैं तो हम अभी अपनी वफाओं का सबूत पेश कर दें और अभी अपनी तलवारों से अपने गले काट कर आपके कदमों पर कुर्बान कर दें। ये सुनना था। हुसैन मज़लूम ने असहाबे बावफा को देखा और देखने के बाद कहा, ए मेरे नासिरों, ए मेरे बावफा साहबियों, तुम पर हमारा सलाम। इसके बाद अपने सामने वो शबीह हुई है, वो शबीह जनाब मूसा इब्न सैम की शबीह है। ये जनाब इमाम अली मकाम की करीब खिदमत से थे और गुलामी का शरफ हासिल था। उसके बाद जनाब सैयद सज्जाद की खिदमत में आ गए, साथ इब्न ताई की शबीह। उसके बाद जनाब जबला बिन अली शहबाजी की शबीह, मौलाए कायनात की सहाबियत का शरफ हासिल था। मौलाए कायनात के साथ आपने जंग जमल, जंग सिफ़ीन और जंग नहरवान में शिरकत फरमाई। उसके बाद इमाम अली मकाम की खिदमत में करबला वाली हुए और करबला में आने के बाद आपने जाने शहादत रोज फरमाया। ये वो सारे बाबा हैं के जिन्होंने करबला में इमाम अली मकाम की नुसरत में कोई कमी नहीं बातें होने दी, वो कैसे भी आवाज देते रहे, ये हमारे साथियों देखो कहीं ऐसा ना हो हम जिंदा रह जाए और हुसैन के खैमे में कोई तीर आ जाए, हम सलाम रहता आमद रह जाए और हुसैन के बच्चों पे कोई नाच आ जाए। ये जज्बा लेकर जो असहाब आए थे उन्होंने वाकई करबला के मैदान में जामे शहादत नोश फरमाया। जरा हुसैन के कलेजे से पूछिए, हुसैन एक एक सहाबी को इसने वहाँ देते रहे और एक एक नासिर आता रहा और जामे शहादत नोश फरमाता रहा। और हुसैन को जब खबर मिलती थी तो हुसैन दौड़ करके मक्तल में आते थे, आकर के शहीदों की लाश पर गिरफ्तारी करते थे। जनाबे हारिस इब्न उमर कैस की शबीह चली गई। आपने देखा ये मक्के से आए थे और आने के बाद इमाम अली मकाम की खिदमत में करबला में वालिद हुए और आपने जामे शहादत नोश फरमाया। इसके फौरन बाद आपके सामने वो शबीह आ रही है, वो शबीह जनाबे जनादा बिन काबे हर्ष की है। उसके पीछे जनाब ज़ुहैर बिन सलीम अज़दी की है। उसके पीछे जनाब सैद बिन मालिक अब्दी की शबीह है। ये वो अफराद हैं जो मुख्तलिफ कबाइल से आए थे।
आप भी पहले तवज्जो रहिए, ये वो अफराद हैं जो मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक रखता था। कोई कबीले बनीना से ताल्लुक रखता था, कोई कबीले जज्जत से ताल्लुक रखता था। मुख्तलिफ कबाइल के अफराद आए थे, इमाम अली मकाम की गुर्बत को महसूस करके उनके ऊपर अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। अरबाब अज़ा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, हुसैन मज़लूम ने इन्हीं असहाबे बावफ़ा को एक बार शब आशूर इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद आवाज़ दी कि मेरे साथियों को पता है कल कौन सा दिन आने वाला है, कल आशूर का दिन है, कल हमारी शहीद हो जाने का दिन है, कल हमारे सरोवर में जुदाई का दिन है, कल हमारी लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। तुम्हें पता है ये मलाइल तुमसे कोई इनका लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ हमारी जान के दुश्मन है ना, लिहाजा ये हमें कत्ल करने के लिए आए हैं। हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम्हें जिसको जाना हो चला जाए। अरबाब अज़ा, रिवायत बताती है कि जब कोई अपनी जगह से हिलने को तैयार न हुआ तो इमाम अली मकाम को हुज्जत तमाम करने के लिए जुमला कहा कि अगर तुम्हें जाने में शर्म आ रही है तो एक काम करो, हमारे छोटे छोटे बच्चों की उंगलियां थामो और इन बच्चों को बचाने के लिए ये अगर चले जाओ, इनके बहाने तुम्हारी भी जान बच जाएगी। उसके बाद भी जब कोई न गया अरबाब अज़ा, एक मिनट के लिए मुझे पढ़ने दीजिए। अरबाब अज़ा, उसके बाद भी जब कोई न गया तो रिवायत का फिक्रा ये है कि हुसैन ने चराग खैमा गुल कर दिया और चराग गुल करने के बाद कहा अगर हमारे सामने जाने का तकल्लुफ हो रहा है, हम चराग गुल कर देते हैं, अब तो चले जाओ। मगर फिर भी कोई जाने को तैयार न हुआ। ये जज्बा कहाँ से आया? ये जज्बा हुसैन की गरीबी वतनी के देख दिलों में पैदा हुआ था कि ज़हरा का लाल लगे हुए बच्चे हैं, अब इसे तन्हा कैसे छोड़ दें? हज़रत वहाब इब्न अब्दुल्लाह कलमी की शरीर है, आप जरा तो सबूत तो कीजिए कि ये कैसे सारे बाबा थे, क्या जज्बा लेकर आए थे? रिवायत का फिक्रा ये है, वहाँ हालांकि मुसलमान मजहब से ताल्लुक नहीं था, इस्लाम से ताल्लुक नहीं था, ईसाई मजहब से ताल्लुक था, मगर ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने के बाद भी क्या जज्बा था कि मक्तल की तरफ हुसैन की नुसरत को जाने लगे। एक मरतबा 9 प्यासा 17 रोजा दुल्हन थी, दुल्हन ने मरतबा पढ़ करके चौहर के दामन पे हाथ रखा और हाथ रखने का मकसद ये तो कुछ और था, मगर माँ ने क्या समझा? माँ कहती है बेटा सोचा के बहकावे में ना आ जाना, वो सच्ची नहीं गई दुल्हन है, हो सकता है कि शौहर की मोहब्बत को उसे रोक ले, लिहाजा माँ का जज्बा बुलाता फरमाइए बेटा सोचा के बहकावे में ना आना। सोचा पलट के आवाज देती है अम्मा हम इन्हें जाने को मना नहीं कर रहे, अम्मा हम तो सिर्फ इनसे इतना कहने के लिए को रोका था कि आप जाइए मख्तल की तरफ और हमें खैमे में ज़ैनब की कनीज़ी में ले लीजिए। अल्लाह अकबर, अब ज़ैनब की कनीज़ें भी तो है ना, माए और बहनें भी तो है ना, जरा माँ का कलेजा अपना फरमाइए करबला की ख़वातीन का, हमें ज़ैनब की कनीज़ी में ले दीजिए। ये आपकी दौरा तुम ज़ैनब की कनीज़ी में जाके क्या करोगी? तो वो आवाज़ देगी हमने सुना है कि जब हुसैन शहीद कर दिया जाएगा तो मलाइल खैमे में आ जाएंगे, अगर खैमे में आएंगे तो लोगों की चादरें छिप जाएंगी, हमें अगर ज़ैनब के हवाले कर दोगे तो हमें यकीन है सबकी चादर उतर जाएगी, मगर किसी की हिम्मत नहीं है जो ज़ैनब की चादर को छीन ले। लिहाजा ज़ैनब के साथ मैं रहूंगी तो मेरा पर्दा सलामत रहेगा। ये मौलाए वहां तुझे क्या पता? आपके सामने रासिमी की शबी आ रही है, रासिमी की शबी आ रही है। ये वो थे जो मक्के से आए थे, बाकी खिदमत पे हाफिज़ कुरान भी थे और आबिद ज़ाहिद थे और बहुत पहलवान थे, बहुत जमासाल थे। इन्होंने आकर गुजर ले करके करबला में वालिद हुए और कोई कभी नहीं वाक़ होने दी। इस तरह से अपनी जान इमाम अली मकाम को कुर्बान की, एक मतलब मक्तल से आवाज़ दी फज़ल रसूल आप पर हमारा सलाम हो। हुसैन ने सुना तो रिवायत का ज़िक्र, हुसैन सुनने के बाद बाप ज़ालिम गुमान की खबर को भगवान के जनाजे में पहुंचे और पहुंचने के बाद फरियाद की और गिरिया किया। नुमान पर इमाम अली मकाम रोए। अब सोचने की बात है जिस पर फर्जंद ज़हरा आंसू बहा रहा हो, हम आखिर उन पर गिरिया न करें तो क्या करें? उसके बाद जनाब शबीर इब्न अब्दुल्लाह नशरी की शबी जा रही है, ये भी कूफे से तशरीफ लाए थे और आकर करबला में वालिद हुए और इमाम अली मकाम की नुसरत पे अपनी जान कुर्बान कर दी। जनाब शबीर इब्न नशरी की शबी आपने देख ली। इसके बाद जो शबीहें आ रही हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि अब आप शबीहों को जरा सा तेजी के साथ लाइए, इससे का वक्त कम है, बाद में हमें 18 बनी हाशिम के वसाइल शुरू से पढ़ना है। मगर ये जो शबीहें आ रही हैं, इन शबीहों की दरख्वास्त है कि आप जरा सा जल्दी के साथ इन शबीहों को लाइए और शबी ले जाने वाले से गुजारिश है कि आप जहाँ जा खड़े हैं अपनी जगह खड़े रहिए, शबी को देखिए और देखने के बाद खामोश न रहिएगा, आंख से आंसू जारी कीजिएगा, उंगली को बढ़ाइएगा और आवाज दिएगा ए अंसारे हुसैन आप पर हमारा सलाम, ए अंसारे हुसैन आप पर सलाम। ए वो जो
خون نکلتا زمین کربلا تو حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان سب پر ہمارا سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب امام علی مقام جب کربلا کے میدان میں آئے نا تو امام کے اندر ایک ہی جذبہ تھا، امام بس یہ چاہتے تھے کہ ہم دین کا تحفظ کر لیں، اسلام کا تحفظ کر لیں، شریعت کا تحفظ کر لیں، نظام مشیت کو بچا لیں، اس کے لیے جو بھی قربانی پیش کرنی ہو پیش کر دینا۔ حسین کیا کرو گے؟ حسین اسلام سے آواز دینا، اسلام اگر تجھے ضرورت پڑے گی جب وقت آئے گا تو ہم اپنے ششمائے کا گلا بھی دے دیں گے، اگر ضرورت پڑے گی ہم اپنے کلیجہ جوان لال کا کلیجہ بھی دے دیں گے، اگر ضرورت پڑے گی ہم اپنے باوفا کا بازو بھی اس پر قربان کر دیں گے۔ اور حسین اس جذبے کے ساتھ کربلا میں آئے تھے، آپ سوچے وہ حسین جو اکبر علی اصغر کو لائی اس لیے تھے کہ اسلام پہ قربان کرنا ہو، جذبہ رہا ہوگا۔ جناب مسعود ابن حجاج الطیبی کی شبی آپ حضرات نے دیکھا، آپ نے اس کی بھی زیارت کر لی۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے جو شبی آ رہی ہے یہ جناب جون ابن نبی کی شبی ہے۔ جناب جون کون ہے کیا بتانے کی ضرورت ہے آپ کو؟ میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب امام علی مقام کی خدمت میں آئے ہیں وہ آنے کے بعد کچھ کہا نہیں، صرف نظروں کو جھکایا، جھکا کر کے رونا شروع کر دیا۔ جب آنکھوں سے جاری آنسو دیکھا ہے باپ نے تو ماں نے پوچھا جون کی طرف پریشان کیوں ہو، جون اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ تو جون آواز دیتے ہیں آقا سب کو آپ مقتل کی اجازت دے رہے ہیں مگر مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ حسین نے ایک مرتبہ کچھ کہا نہیں، بس سر کو جھکایا تو جون نے پلٹ کہا آقا مجھے پتا ہے آپ کیوں نہیں اجازت دے رہے، مجھے آپ اجازت اس لیے نہیں دے رہے کہ میرے چہرے کا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے خون سے بدبو آ رہی ہے، اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دیتے۔ مولا نے اسی وقت بشارت دی تھی جون جاؤ، کربلا میں جانے کے بعد تمہارا خون بھی طاہر ہو جائے گا، تمہارا چہرہ بھی نورانی ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب شہداء کے لاشیں دفنانے کے لیے بنی اسد آئے تھے نا تو آنے کے بعد فوراً ایک جملہ کہا آقا سب لاشیں تو ایک طرف مگر ایک لاشا ایسا بڑا ہوا ہے کہ جس لاشے سے پورے مقتل میں روشنی نکلی ہوئی ہے اور اس کے بدن سے عجیب سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب مولا سجاد نے آواز دی ارے یہ کوئی اور نہیں میرے بابا کا صحابی جون وغیرہ بابا نے دعا دی تھی لیجیے الماء اب اس کے بعد جناب سوار ابن عمر ہمارا علی کی شبیہ ہے جب ہماران سے کا تعلق تھا اور اس کے بعد کوفے میں رہنے والے تھے، کوفے سے چل کر امام علی مقام کی خدمت میں کربلا میں والد ہوئے اور کربلا میں آنے کے بعد جامع شہادت گوش فرمایا۔ آپ کربلا میں چھٹی ماہ محرم الحرام کو والد ہوئے تھے اور بہت سارے اصحاب ایسے تھے، کوئی چھٹی محرم کو آیا، کوئی 8ویں محرم کو آیا، کوئی شب عاشور آیا، ایسے ایسے حسین کے اصحاب تھے جو مختلف اوقات میں امام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور جامع شہادت گوش فرماتے رہے۔ لیکن ارباب اعزاء ان شبیوں کا آپ نے استقبال کیا، میرے سامنے بہت دور تک مجمع کھڑا ہے، حد نظر مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے اور باہر سڑکوں پر گلیوں پر میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، شبیوں کا استقبال کر رہی ہیں نا۔ اب آپ کے سامنے جناب کنانا ابن عدی کے تبلیغ کی شبیہ تبلیغ کی شبیہ آ رہی ہے۔ ان کا تعلق بنی تغلب سے تھا اور یہ تنہا نہیں آئے تھے بلکہ 3 بھائیوں کے ہمراہ یہ مقتل میں آئے تھے، جناب قدوس، جناب کنانا اور ایک بھائی کی اور یہ تینوں بھائی کربلا میں آئے تھے اور تینوں بھائی نے امام علی مقام کی نصرت پہ جامع شہادت گوش فرمایا۔ اور جب رخصت ہو جاتے تھے تو مقتل سے ہر شہید آواز دیتا تھا آقا آپ پر ہمارا سلام۔ اور کتنا کریم اور ابن کریم تھا میرا مولا کہ جب بھی کوئی ساتھی کوئی صحابی آواز دیتا تھا تو حسین دوڑتے ہوئے اس کی لاش پر جاتے تھے اور جانے کے بعد لاش پر گریا کرتے تھے، لاش کو اٹھاتے تھے، آغوش میں لیتے تھے اور بڑی پیار کے ساتھ لاشوں کو مقتل سے خیمے تک لاتے تھے اور خیمے میں سیدانیہ بیٹھ کر لاشوں کا استقبال کرتی تھی اور ماتم کرتی تھی۔ جناب مسعود بن حجاج الطیبی کی شبیہ آ رہی ہے، بنی تیم سے ان کا تعلق ہے، کوفے کے باشندے تھے، جنگ جمل، جنگ نہروان اور جنگ صفین میں آپ نے شرکت فرمائی مولا کائنات کی میت میں۔ اس کے بعد پھر کربلا میں والد ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی جان قربان فرما دی۔ اللہ ان صحابہ پر، ان اصحاب باوفا پر ہمارا لاکھوں سلام جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور جنگ زہرا پر کوئی ناچ نہ آنے دی۔ آپ کو پتا ہے مختلف قبائل کے افراد، مختلف قوموں کے افراد اس قافلے میں شریک ہوئے تھے۔ جناب حجاج بن مسعود جوفی کی شبیہ آ رہی ہے، آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ امام علی مقام ان سے بھی بڑی محبت کرتے تھے اور یہ بھی اسلام کے بڑے دلدادہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام نے کربلا میں آنے کے بعد حجاج بن مسعود کو
को मुअज्जिन करबला के तौर पर मुंतखब किया था और हज्जाज अजान दिया करते थे। और रवायतों का फैसला सुनिए, जब हज्जाज अजान देते थे ना, और जब हज्जाज गुलसे अजान पर जाकर कहते थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो इमाम के चेहरे पर बशाशत की लकीर होती थी, नारे तकबीर बुलंद करते थे। उधर हज्जाज कहते थे अल्लाहु अकबर, उधर हज्जाज की तकबीर सुनकर इमाम अली मकाम कहते थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप सोचिए ये कितनी अजीम मर्तबा शख्सियत रही होगी जिसे खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला का मुअज्जिन बनाया था। और हज्जाज ने मुसलसल अजान दी। हाँ पता एक वक्त आया जब करबला में मुअज्जिन करबला तब्दील हो गया था। आपको पता है ना, हज्जाज ने यूसुफ की हज्जाज की जगह, हज्जाज ने मसूद की जगह दूसरा मुअज्जिन कौन था? लैला का खड़ियल जवान बेटा अली अकबर था। जज़ाकुमुल्लाह। अब आपके सामने जनाब कासिम बिन ज़ुहैर की छवि गुजर रही, आपने देखा इस छवि की भी आपने ज़ियारत फरमा ली। आपका भी ताल्लुक कूफे से था, आप भी मौला कायनात के साथ करबला कूफे में थे और उसके बाद फिर करबला में वालिद हुए और आपने भी जाम शहादत नोश फरमाया। ये वो असाबे बावफा हैं। इसमें बहुत से अफराद ऐसे हैं जो मक्के से इमाम के साथ आए थे, कुछ मदीने से इमाम के साथ आए थे, कुछ बसरे से इमाम की खिदमत में आए थे और कुछ करबला में आने के बाद इमाम की मैयत में दाखिल हो गए थे। ये वो अफराद थे जिसको जब पता चला कि ज़हरा का लाल मुश्किल में घिरा हुआ है, वो फौरन आता था और आकर के इमाम की खिदमत में अपनी जान कुर्बान कर देता था। जनाब ज़ाहिर इब्ने उमरू की शबीह जा रही है, इनका भी ताल्लुक मक्के से रहने वालों से, मक्के के अशराफ से इनका ताल्लुक था और ये भी इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और आने के बाद जामे शहादत नोश फरमाया। आप तो सिर्फ मसाइल सुन रहे हैं ना कि ये शुहदा थे जिन्होंने हुसैन पर अपनी जान कुर्बान की, मगर जरा तसव्वुर की निगाह से देखिए कि जब ये मक्तल में जाते होंगे और चारों तरफ मलाइका का नारा होता होगा और चारों तरफ से हमला होता होगा, तो ये किस तरह पर ज़हरा पर अपनी जान को कुर्बान कर रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। जनाब अब्दुल रहमान इब्न अब्दुल्लाह यूसुफी की शबीह जा रही है। आपका ताल्लुक बनी अस से था, कबीला बनी अस से था। बनी अस के ताल्लुक से रखने वाले आप बहुत ही बहादुर और जामात सिपाही थे और करबला में आने के बाद इमाम की खिदमत में हाजिर हुए, इमाम से इज़्ज़त ली और मक्तल में गए और जाकर के जामे शहादत नोश फरमाया। अब उसके बाद जनाब अब्दुल रहमान इब्न अब्दुल रब्बी खज़रजी की शबीह जा रही है। अब्दुल रहमान बनी खज़रज से ताल्लुक रखते थे और आप भी इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर हुए और इमाम से इजाजत तलब की, मक्तल में गए, जामे शहादत नोश फरमाया। बहुत सारे असहाबे बावफा हुसैन मज़लूम की ऐसे थे कि जिन्होंने आने के बाद हुसैन से इजाजत तलब की। हुसैन से पूछिए, हुसैन जब भी कोई साथी आता था इजाजत तलब तो करता था, मगर हुसैन किस दिल से इजाजत देते थे ये हुसैन बता सकते। हुसैन अपने साथियों को देखते थे तो देखने के बाद हुसैन सोचते थे ये भी अब हमारे साथ छोड़ने को तैयार है, ये भी हमें छोड़कर जाने को तैयार है। अब अभी अल्लाह नहीं आप महसूस तो करें जैसे जैसे साथी कम हो रहे होंगे हुसैन के दिल में क्या गुजर रही होगी कि अब कितने थे, कुल 72 अफराद हुसैन के साथ करबला में आए थे, उधर लाखों का लश्कर था। अरबाब अज़ा जनाब हमारी में अभी सलाम दलानी की शबीह जा रही है और उसके पीछे भी जनाब हलाल इब्न उमर रासिबी की शबीह जा रही है। हलाल में आपकी खिदमत में यह कर रहा था कि एक हमला करबला के मैदान में जिसे हमले उल्ला कहा जाता है, पहला हमला असहाबे बावफा की वफादारी को सलाम कीजिए। इन्होंने आपस में तय किया कि हम शाना पशाना दीवार बनाकर खयाम हुसैनी की तरफ इस तरह खड़े हो जाएंगे कि अगर कहीं से भी तीर आए तो हमारे जिस्मों पर लगे, खयाम हुसैनी तक न जाने पाए, न हुसैन पर कोई हर्फ आए, न हुसैन के बच्चों पर कोई हर्फ आए, हम रोसर हो जाए, हमारी जान चली जाए। जनाब जलील्लाह बिन अली शिवानी आपका कूफे से ताल्लुक था, मौला कायनात की सहाबियत का शरफ हासिल था और उसके बाद फिर आप करबला में वालिद हुए और आने के बाद जामे शहादत नोश फरमाया। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। कितनी शबीह है आपके सामने से गुजर गई, आप मंजर को देख रहे हैं और जब आप मंजर शबीह को देखते हैं तो आपकी आंखों से आंसू जारी होता है, आप रोने पे आमादा हो जाते हैं। सोचिए हुसैन पर क्या गुजरती होगी जब हुसैन इन शहीदों का लाशा अपनी आंखों से देखते होंगे तो हुसैन पर क्या गुजरती होगी। जनाब अनस इब्न हारिस काहिली की शबीह आपके सामने जा रही है। ये हुसैन का वो बूढ़ा सहाबी था, ये हुसैन का वो वफादार सहाबी था कि जिसे मौला कायनात की सहाबियत का भी शरफ हासिल था और उसके साथ साथ खुद रसूलुल्लाह की सहाबियत का भी शरफ हासिल था।
अरबाब अज़ा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, मैं बड़ी तेजी के साथ मंजिलों को तय कर रहा हूँ, बस आपकी तवज्जो दरकार है। जनाब अनस की कैफियत ये थी कि पैगंबर से सुनना था कि एक वक्त आएगा जब ज़हरा का लाल करबला में पेरा को किया कत्ल जनपद में ज़िबा कर दिया जाएगा। इतना सुनना था तो उसी वक्त से ये जज्बा बेदार हो गया था कि अगर हम जिंदा रहे तो अपनी जान फर्जंद ज़हरा पर कुर्बान कर देंगे। ये अरबाब अज़ा, अबू समामा है, साइदी की शबीर आपके सामने से जा रही है। आपको पता है ये कौन है? अबू समामा। ये अबू समामा वो है कि जब जोहर की नमाज का वक्त आया ना और वक्त गर्म था, ऐसे आलम में अबू समामा ने बदबावा दिया था, दिल ये चाह रहा है कि एक नमाज और आपकी एक पता में अदा कर दिया जाए। नमाज का वक्त आ गया, रवायत का फिरा है, इमाम ने बदबा आसमान को देखा और एक बदबा अबू समामा को देखा और देखने के बाद जुमला कहते हैं, खुदा तुम्हें इबादत गुजारों में शुमार करे। ऐसे ऐसे सहाबा थे जिन पर हुसैन मुसलसल इफ्तिखार करते थे। लीजिए अरबाब अज़ा, अब आपके सामने जो शबीहें आ रही हैं, इन शबीहों को देख रहे हैं। अभी एक शबीह गुजर गई, इस शबीह के साथ साथ दूसरी शबीह। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जरा सा ठहर जाइए, इसलिए आसानी के साथ इन शबीहों को लेके न गुजरिए। शवा सामीन और आज़ादारों को थोड़ा सा मौका दे दीजिए गिरिया करने का। अगर मैं बहुत तेजी के साथ मजलूम को तय कर रहा हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मजमा जो यहाँ आया है रोने के लिए, इसे रोने का भी मौका न मिल सके। आप देखिए एक शबीह गुजरी आपके सामने जनाबे हुर इब्ने यजीद रियाही की, उसके पीछे एक शबीह है हुर इब्ने यजीद रियाही की। आपको पता है ये कौन है? वो हुसैन का सिरमान है, हुसैन का वो मेहमान है, हुसैन का वो बावफा साहब है कि जिसने आवाज दी मौला मौला मूसा इब्ने यजीद। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं थोड़ा सा ठहर जाइए और मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज। मैं दरखास्त कर रहा हूं आप से और जो मुंतज़रीन है उनसे गुजारिश है कि आप जरा सही से हिसाब से शबीहों को भेजिए। मैं थोड़ा सा मसाइल पढ़ सकूं के बारे में। जनाब हुर के पीछे जनाब मूसा की शबीह आप देखिए। जनाब मूसा कौन है? हुर के भाई हैं। हुर एक छोटा सा काफिला लेकर करबला में आया था, हुर मकल से हुसैन के खैमे में आया था। ये कौन है? हुर का बेटा भी आया, हुर का भाई भी आया, हुर का गुलाम भी आया। ये सब आए थे, किसलिए आए थे? इसलिए आया था कि हुर को पता था कि ये हुसैन के खैमे में अलबश की आवाजें बलंद हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम उसके जिम्मेदार हैं। इतना सुनने के बाद रावी कहता है कि वो सारी रात मक्तल में भटकता रहा, अपने खैमे से निकलकर बाहर। मैं थोड़ी देर के लिए जरा सा रोक दीजिए शबीह को। मैं मुतज़मीन से मुशीर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बराए मेहरबानी इतनी तेजी के साथ शबीह को न निकालिए कि मैं थोड़ा सा भी मसाइल न पढ़ पाऊँ। मुशीर साहब से मेरी मुतज़िम से गुजारिश है कि जरा सा लिहाज कीजिए। आप ये मजमा सामने खड़ा है, ये रोना चाहता है, इसे मौका दे दीजिए। ये अपनी आंखों से निकाल ले। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अरबाब अज़ा, अब आप सोचे हुर ने एक मरतबा खैमे के बाहर टहलना शुरू किया। जब वो टहलने लगा तो हुर का जवान बेटा आया और आकर कहता है कोई तरह बेकरार कभी नहीं रहता था, पापा ये आपका क्या हाल हो रहा है? तो आवाज दी हुर ने, ये बेटा मेरा खैमे की तरफ कान लगाओ। अब तो खैमे में कान लगाया तो कह रहा बाबा हुसैन के खैमे से ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं हाय प्यास जनाकुमुल्लाह जनाकुमुल्लाह। ये माहौल होना चाहिए अरबाब अज़ा, शबीहों का इस्तेमाल ऐसे होना चाहिए। एक मरतबा वो कहता है मेरे लाल इन आवाज़ों के बुलंद होने का सबब कोई और नहीं है, मैं हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ हुसैन की तरफ। और ये तख्तों का छुआ हुआ और आ गया हुसैन के लश्कर की तरफ और आकर आवाज दिया, कहा मेरे गुलाम माफ कर दीजिए, मुसाफिर माफ कर दीजिए। हुसैन ने उठाया, गले से लगाया तो फिर पलट के कहता है मैं तब समझूंगा मेरी खता माफ हो गई जब आप पहले मुझे मातल की इजाजत दे देंगे। जैसे ही मातल की इजाजत लेना चाहा तो मतलब जवान बेटा खड़ा हो गया और जवान बेटा कहता बाबा ये कैसे मुमकिन है? अरे बेटा जिंदा रह जाए और मेरा बाप मरने को चला जाए, ये नहीं हो सकता। इतना सुनने के बाद एक मतलब बाप में बेटा भाई सब साथ में आए हुसैन की खिदमत में और बेटे ने इजाजत तलब की। बेटा मक्तल की तरफ आया और मक्तल में आने के बाद उसके आवाज बाबा सलाम में आके लो। रवायत का फतवा ये है कि सारा पर बूढ़ा बाप जैसे ही जवान बेटे की तरफ लपका, फिर जैसे ही पहुंचा देखा हुसैन पहले से मौजूद थे। वो के बेटे का सर उठाकर अपने जानू पर रखे हुए पानी में कंघी कर रहे थे। पूछा अरे आका इतना बड़ा पर आप यहाँ पहले से मौजूद है तो हुसैन का कयामत का जुमला बोलने वालों हुसैन कहते हैं ए हुर मैं जानता हूँ तू बूढ़ा है, ये जवान का लाशा।
اس کے پیچھے جناب سعد بن حرز کی شبیہ ہے. روایتوں میں مختلف نام ملتے ہیں. سعد بن حرز بھی ہے, سعد بن حارث بھی ہے, مختلف نام سے مفاد کے ان کا تعلق بنایا گیا تاریخوں میں. مگر بہرحال آپ اشراف کوفہ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ بھی مقتل میں آئے امام علی مقام کی میت میں, اور آپ نے بھی جامع شہادت روز فرمایا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. حسین علی بابا دے رہے ہیں میرے صاحب وفا تم پر میرا سلام, میرے ساتھیوں, میرے جانبازوں, میرے دلیروں, تم پر حسین غریب کا سلام دیجیے. بابا اعزاز اس کے پیچھے جناب عقروب بن قرظہ بن کعب انصاری کی شبیہ آ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ وہابی تھے, یہ وہ باوفا صحابی تھے کہ جن پر حسین نے افتخار کیا تھا, جن پر حسین نے ناز کیا تھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بابا اعزاز, ذرا ان کی وفاداری کو سلام تو پیش کیجیے. حسین مظلوم ایک اکثر وہ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی شہید مقتل سے آواز دیتا تھا نا تو حسین اس کی آواز پہ لبیک کہہ کر دوڑتے تھے, اور دوڑنے کے بعد جناب حنظلہ ابن ثابت شامی کی شبیہ ہے, شبانی کی شبیہ ہے, یہ بھی کوفے سے آئے تھے اور کربلا میں آ کر امام کی میت میں داخل ہو رہے تھے. جناب طارق بن عبداللہ دوزی کی شبیہ, یہ وہ افراد ہے کہ جنہوں نے مولا کائنات کی صحابیت کا شرف بھی حاصل کیا, اور اس کے بعد آپ ملی کی صاحب جنگ صفین و جنگ جمل و مہربان میں شریک رہے. اس کے بعد جب موقع ملا لوگوں کو پتہ چلا کہ فضل رسول کربلا میں آ گئے تو وہ کربلا میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. ارباب اعزاز حسین مظلوم نے اسی لیے ان اصحاب پر فخر کیا تھا, ناز کیا تھا, افتخار کیا تھا, اور حسین نے مسلسل کہا تھا بخدا جیسے ساتھی مجھے ملے نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے, نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے, نہ میرے بھیا حسن مشتبہ کو ملے, کسی کو ایسے باوفا صحابی نہیں ملے. ایسے باوفا صحابی تھے. اب ہم آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جہاں صرف زینب سوال کر لے بھیا تم نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے, اور یہ آواز جیسے ہی کانوں میں پڑے تو اصحاب باوفا آواز دے آقا شہزادی زینب سے کہہ دیجئے اب ہمارا اور امتحان نہ لے, ہماری وفاداری کا امتحان نہ لے, بس اجازت دے دے تو ہم اپنے سروں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر آپ کے قدموں میں بھی قربان کر دیں گے. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب آپ کو پتہ چلا جب حملہ اولیاء ہوا ہے روایت